Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed and talking about the various topics which are covered in the first chapter, that is an accounting of partnership firm. In this chapter, basically, we are talking about the different theoretical aspect of the partnership firm and how any partnership firm formed, what are the rights and responsibility of the partner, what are the rules applicable in the absence of the partnership deed, and the various accounting treatment related to the preparation of PL appropriation account, partners capital account, interest on capital, interest on drawing, distribution of profit among different partners. As well as we discuss about the accounting treatment related to the past adjustment, which is also known as adjustment in closed account, as well as we discuss about the very important topic, that is a guarantee of minimum profit to a partner. So in today's video, firstly we'll solve the few questions related to the past adjustment, and thereafter we will revise the very important topic which are already discussed in the last video, that is a guarantee of minimum profit to a partner, and thereafter we will start the new chapter, that is a change in profit sharing ratio among existing partner. और ये डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे. तो पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं विच आर रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. AB sharing profit in the ratio of 7:3. The question says that A and B are partners in the ratio of 7:3, and fixed capital is 2 lakh and 1 lakh. The fixed capital of A is 2 lakh and for B is 1 lakh. यानी A की कैपिटल है 2 लाख और B की कैपिटल है 1 लाख. After closing the accounts, it was discovered that interest on capital was provided at the rate of 12% per annum. क्या किया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया एट द रेट ऑफ 12% पर annum. 12% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया इंस्टीड ऑफ 10%. इंस्टीड ऑफ 10%. इस लाइन का मतलब आपको पता ही होगा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, बट हमने दे कितना दिया? 12%, जो कि ज़्यादा है. तो यू नो वेरी वेल, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम रफली क्या करेंगे? एक आपको पता है ए और बी दो पार्टनर हैं, हमने उसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, एक्सेस आईयूसी प्रोवाइड कर दिया. एक्सेस आईयूसी कितना देना था? 10%, दे दिया 12%, तो कितना एक्सेस दे दिया? 2%. तो दोनों की कैपिटल से वो मैं आईओसी कट कर दूंगा. 2 लाख का 12%, 2% इज 4000, 1 लाख का 2% इज 2000 एक्सेस दे दिया. टोटलिटी में फर्म के लिए क्या होगा? फायदा होगा. क्यों? क्योंकि फर्म ने जितना एक्सेस आईओसी दिया था वो उससे रिवर्स कर लिया, वापस ले लिया. तो ए से कितना ले लिया? 4000, बी से कितना ले लिया? 2000. तो टोटलिटी में फर्म के लिए क्या हो गया? 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट. और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? 7:3 में ए और बी में बांटेंगे. तो दिस विल बी 4200, 800. सो एट लास्ट यू कैन सी दैट बी की कैपिटल प्लस होनी चाहिए, ए की कैपिटल प्लस होनी चाहिए 200 से, और बी की कैपिटल माइनस होनी चाहिए 200 से. और इस सिचुएशन में जनरल एंट्री क्या बन के आएगी? यू कैन सी दैट द जनरल एंट्री विल बी ए इज करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल. एंट्री क्या होनी चाहिए? ए इज करेंट, क्योंकि ए की कैपिटल घट रही है और बी की कैपिटल बढ़ रही है. सो बी इज करेंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट. इट विल बी 2. So this is the solution of the first question of today's session, which are based on the adjustment in closed account. And let's we solve the questions related to the next topic, that is a guarantee of profit to a partner. इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, दैट इज एन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. लेट्स वी डिस्कस इट.
guarantee of profit, guarantee of profit to partner। यहां पे हम पार्टनर को क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि मिनिमम हम उसे इतना प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 115 and the question is PQR are partners in the ratio of 3:2:1, 3:2:1. So there are three partners and question further says that R is guaranteed that R को गारंटी दिया गया कि he will get minimum of 20,000। R is guarantee दे, मतलब R ने गारंटी नहीं दी, R is guarantee for minimum share of profit। तो उसे मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, 20,000। ये मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिला है, आर को मिला है। किसने दिया है, फर्म ने दिया है कि रिमेनिंग पार्टनर। लिखा है हिज प्रॉफिट एवरी ईयर, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे क्यू और आर को किसने दिया है, पी और क्यू ने मिनिमम गारंटी दिया हुआ। किसने गारंटी दिया है, मिनिमम प्रॉफिट दिया है पी एंड क्यू ने, कि मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा 20,000। और फर्म्स की प्रॉफिट कितनी है, फर्म्स की प्रॉफिट है 90,000। फर्म्स की प्रॉफिट कितनी है, 90,000। सो फर्म की प्रॉफिट है 90,000। पी क्यू आर आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 और आर को गारंटी मिली कि मिनिमम 20,000 रुपए क्या होगा मिलेगा आपको। तो उस सिचुएशन में आपको बताना है कि पार्टनर्स की प्रॉफिट कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप क्या करिए, पी क्यू आर तीनों का प्रॉफिट निकाल लीजिए। तीनों का प्रॉफिट 20,000 के हिसाब से कि 90,000 के हिसाब से। सो एक्चुअल प्रॉफिट कितनी बनेगी, एक्चुअल प्रॉफिट बनेगी पी के लिए 90,000 इंटू 3/6, क्यू का बनेगा 90,000 इंटू 2/6 एंड आर का बनेगा 90,000 इंटू 1/6। सो पी के लिए कितना हो जाएगा, 45,000, 15,000 और 30,000 और 15,000। सो ये मिनिमम प्रॉफिट मतलब इन लोगों को अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इनको प्रॉफिट मिलेगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नहीं, मिनिमम कितना मिलेगा, आर को मिलेगा मिनिमम 20,000। आर को कितना मिलेगा, 20,000 मिनिमम मिलेगा। कितना कम पड़ रहा है, 5,000। ये क्या है, डिफिशियंसी। सो इस डिफिशियंसी को कौन बॉर्न करेगा, दिस डिफिशियंसी विल बी बॉर्न बाय पी एंड क्यू। इन विच रेशियो, क्योंकि दो लोग हैं तो उनके बीच में रेशियो होना चाहिए ना, किस रेशियो में वो बॉर्न करेंगे, वो बॉर्न करेंगे कि म्यूचुअल रेशियो। म्यूचुअल रेशियो मतलब 3:2। सो ये जो 5,000 है, इस 5,000 को पी जो है, पी और क्यू जो है 3:2 यानी 3/5 to 5 यानी 3,000 बॉर्न करेगा पी, 2,000 बॉर्न करेगा क्यू। सो इनके बीच का जो प्रॉफिट निकलेगा, पी का निकलेगा 42,000, क्यू का निकलेगा 28,000। सो ये आ गया 42,000, 28,000 एंड 20,000 is a correct profit distribution between among P, Q and R, that is in 42,000, 28,000 and 20,000. So please note down. इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो है XYZ आर पार्टनर्स। XYZ आर पार्टनर्स हैं, उनके बीच का रेशियो है 4:3:2। सो XYZ तीनों पार्टनर हैं, ठीक है, और उनके बीच का रेशियो है 4:3:2। और ये कहा गया कि X को सैलरी मिलेगी 15,000। सैलरी X को कितना मिल रहा है, 15,000 रुपये महीना, 15,000, ओनली 15,000 एंड Y इज 3,000। सॉरी, Y को नहीं, Z को 3,000। सो ये दोनों पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है।
you know very well, and omitted and distributed and profit distributed. मतलब गलती क्या हुई है, ये एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट का क्वेश्चन एक तरह से कि एक्स को सैलरी देना था 15,000 और जेड को देना था 3,000, हम भूल गए देना, ओके, और प्रॉफिट बांट दिया। तो अब हम करेक्ट कर रहे हैं, तो पहले एक्स को दे दो, जेड को दे दो, तो टोटलिटी में फर्म को क्या हुआ, 18,000 का लॉस हो गया। भाई 15,000 एक्स को सैलरी दोगे और जेड को दोगे तो टोटलिटी में 18,000 का लॉस होगा। ये लॉस कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्स बाई जेड। सो ये लॉस एक्स बाई जेड बियर करेंगे, किस रेशियो में बियर करेंगे, जो उनके बीच का म्यूचुअल रेशियो है। रेशियो इज 4:3:2, 4:3:2 यानी 4:9, 4:3:2, 4:9 यानी 8,000, 6,000, 4,000, इन तीनों में बियर करेंगे। सो फाइनली एक्स को प्लस मिलेगा 7,000, वाई को माइनस मिलेगा 6,000, मतलब उसे देना पड़ेगा, और जेड को भी माइनस करना पड़ेगा 1,000। तो आपको तो रूल पता ही है, व्हाट इज द रूल, देयर इज अ नो रूल। नहीं, ये देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा मैंने डाउन किया हुआ है, यू कैन सी दैट कि इन टोटलिटी 7,000 जो है एक्स को प्लस किया जाएगा, वाई को 6,000 माइनस किया जाएगा और जेड को 1,000 माइनस किया जाएगा। तो आपको पता ही है टोटलिटी में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसकी जनरल एंट्री पड़ेगी, इसकी जनरल एंट्री आएगी आपकी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और अमाउंट आपको पता ही है, अमाउंट विल बी 6,000, 1,000 एंड 7,000। नोट डाउन कर लीजिए। Now let's we discuss the topics and contents related to the third chapter of your book, and this is a second chapter of unit 2, which are related to the accounting of partnership firm. So in this chapter, you know very well, in this chapter, that is a change in profit sharing ratio. इस टॉपिक को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने इस पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कोशिश की है कि लगभग सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लें। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, तो सिचुएशन में हम कैसे ट्रीटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन of partnership firm. So what is the meaning of reconstitution of partnership firm? Reconstitution of partnership firm is a situation where old agreement comes to an end and the new agreement will be formed. यानी जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनकर आता है। And the reconstitution of partnership firm is become effective in the following specific situation, like when there is a change in profit sharing ratio, जब पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो है वो चेंज होता है, when there is a admission of a new partner, when any old partner retired from the firm or any partner died in the firm. So ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो पुराना एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का वो परिवर्तन हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट आता है। इस सिचुएशन में हमें कई तरह के एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिस्कस करना होता है। दूसरा हमें डिस्कस करना होता है इस चैप्टर में कॉम्पिटिशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, computation of sacrificing ratio and gaining ratio। हमें क्या निकालना पड़ता है, sacrificing ratio और gaining ratio पे निकालना पड़ता है। What is the sacrificing ratio? You know very well. In case of the change in profit sharing ratio, जब भी profit sharing ratio change होता है तो you know very well हमारा जो
हमारे सामने दो सिचुएशन आ सकती है। एक, जब हमारा न्यू रेशियो जो है वो कम हो और ओल्ड रेशियो ज़्यादा हो, मतलब हमें पहले पार्टनरशिप फॉर्म में ज़्यादा वैल्यू मिलती थी, ज़्यादा वेटेज मिलता था, बट नाउ हमारा जो न्यू रेशियो है वो कम है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जब हमारा ओल्ड रेशियो कम हो और न्यू रेशियो क्या हो, ज़्यादा। मतलब पहले हमें पार्टनरशिप बिजनेस में कम प्रॉफिट मिलता था, अब हमें ज़्यादा मिलता है। तो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू सिचुएशन विच आर रिलेटेड टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे हम सेक्रीफाइस करते हैं या फिर हम गेन करते हैं। The third accounting treatment which are done at the time of the change in profit sharing ratio is the valuation of the goodwill, accounting treatment of the goodwill. You know very well, आपके कोर्स में different methods दिए गए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, goodwill को वैल्यू कर सकते हैं, like average profit method, super profit method and capitalization method. So goodwill का valuation and साथ ही साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ इसमें थ्योरेटिकल भी आता है क्योंकि फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट, तो उन फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ओके, एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी कि ये टॉपिक हमें ये बताएगा कि जितने भी रिजर्व्स हों, चाहे वो जनरल रिजर्व्स हों, चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व हों, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों, चाहे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हों, उनको हम कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट करेंगे, कैसे इनको रिकॉर्ड करेंगे। इसमें भी दो सिचुएशंस हैं, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिसाइड एंड सेकंड इज वांटेड डू नॉट वांट टू डिसाइड सच चेंजेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी ये टॉपिक हमें बताता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर, सो इन दिस सिचुएशन इफ एनी काइंड ऑफ चेंजेस ऑकर्ड इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई चेंजेस होता है, उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस आता है, उस वैल्यू में चेंज आने से जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर अस। सो लेट्स वी डिस्कस वन बाय वन टॉपिक एंड सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल टॉपिक, दैट इज इन कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसमें कई तरह के एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, कई तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और and I requested to each and every student kindly open the multiple choice question session given in your book। आपके बुक में पेज नंबर 3.90 के बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो किसकी है, वो पूरी की पूरी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मैंने इसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग क्वेश्चंस, और उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें कई तरह के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिवन है, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज एन कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है
इक्वली, इक्वली मतलब इक्वल मतलब 1:1, बहुत ही सिंपल सा है। On 1st April 2019 they agreed to share profit in the ratio of 4:3। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। नाउ ए और बी का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 4:3 हो गया। ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए गेन और सेक्रीफाइस, आपको बताना है ए ने गेन किया कि सेक्रीफाइस, सिर्फ ए का पूछ रहा है, आपको सबसे नहीं मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, ओनली ए से, सिर्फ हमें ए से मतलब है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ए। तो क्या करेंगे हम, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि आपको पता है इट इज वेरी इजी कि जब हमारा ओल्ड ज़्यादा हो न्यू कम हो तभी हम सेक्रीफाइस करते हैं, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो इट विल बी कॉल्ड गेनिंग रेशियो। सो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है 1/2, न्यू हो गया 4/7, निकाल के देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही आएगा, गेन आएगा, सेक्रीफाइस नहीं आएगा। 1/40 इट बी माइनस, सो ए ने क्या किया, गेन किया। सो राइट आंसर इज ए ने क्या किया, गेन किया, वो भी कितना गेन किया, 1/40। सो द फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट डाउन कर लीजिए। सो द नाउ द नेक्स्ट question, the question number 6 says that, the question number 6 says that A, B are partners in the ratio of 2:1। A और B किस रेशियो में है, 2:1। चेंजेस क्या किया गया है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब अब उनका जो नया रेशियो है वो अब क्या हो गया, इक्वली हो गया, मतलब बराबर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो, मतलब आपको दोनों का बताना है, ए और बी दोनों का गेन हुआ कि सेक्रीफाइस हुआ। सिंपल सा है, ए का और बी का दोनों का निकाल लो। एक ही फॉर्मूला रख के ओल्ड 2/3 1/3 माइनस 1/2 1/2, इट विल बी 6, 4 माइनस 3 1/6, यानी ए ने क्या किया 1/6 सेक्रीफाइस किया है और बी ने -1/6 गेन किया, यानी कि ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने गेन किया। सो फाइनली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी ने गेन किया, और एंड द ऑप्शन इज 1/6। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को और टफ करते हैं। क्वेश्चंस का टफ पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 13। वैसे क्वेश्चन में जो 13 है वो बेसिकली टफ नहीं है, उसमें 2 की जगह 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर्स का भी हमें निकालने आना चाहिए। कि जैसे सपोज 3 पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2। तो क्वेश्चन में 13 सेज दैट ए बी सी तीनों का रेशियो कितना है 4:3:2, और उनके बीच का PSR चेंज हो गया। अब ए बी सी तीनों का रेशियो कितना हो गया, ए बी सी तीनों का रेशियो हो गया, द रेशियो विल बी 4:3:1, 4:3:1 हो गया। ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंजेस हुआ है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ए बी और सी, ए का ओल्ड कितना है 4/9, 3/9, 2/9 माइनस न्यू क्या है 4/8, 3/8, 1/8, इट विल बी 72, 32 माइनस 36, 72, 24 माइनस 27, 72, 9, इट विल बी -4/72, -3/72, इट विल बी 7/72। सो ये गेन सेक्रीफाइस है, बाकी सब गेन कर रहे हैं। ए गेन कर रहा है 4/72, बी गेन कर रहा है 4/72, बी गेन कर रहा है 3/72, एंड एस गेन कर रहा है, एस जो है सी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 7/72। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13।
So in today's video we discussed and start the second chapter of the unit 2, that is an accounting of partnership firm, that is a change in profit sharing ratio with existing partner. And you know very well this is a very important chapter for the multiple choice question point of view. So I hope today we cleared all the things very easily. Thank you. Take care.